Hello everyone, this is part 3 of the series, Polity series which is ongoing. एक चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इस सीरीज़ का आपको मुझे ऐसा लगता है तभी फ़ायदा है जब आप इसके साथ अपनी बुक को सामने रखेंगे और खुद ब्रेनस्टॉर्म करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आई थिंक इट विल हेल्प यू। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। First question is, in Indian political system, which one is supreme? The Supreme Court, the Constitution, the Parliament or religion? The Constitution हो जाएगा. The Constitution is supreme in the Indian political system. The Constitution of India is the supreme law of India. It lays down the framework defining fundamental political principles, establishes the structure, procedures, powers and duties of government institutions, and sets out fundamental rights, DPSP, and the duties of the citizen. Next question is, the concept of judicial review in India has been adopted from the Constitution of USA. The constitution of judicial review in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of US. Judicial review is the power of the courts to examine the actions of the legislative, executive, administrative arms of the government and to determine whether such actions are consistent with the Constitution. Actions judged inconsistent are declared unconstitutional and therefore null and void. The system of judicial review exists in India and USA both. आपने पीछे देखा. Which of the following characteristics is common between federal system of India and America? Single citizenship? No. US में dual है. 3 lists in the constitution? नहीं. डुअल जुडिशल सिस्टम, यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहाँ पर एक फेडरल कोर्ट अलग है और स्टेट्स के कोर्ट्स हैं. अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, दिस इज करेक्ट. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is common in both Indian and American federal systems. While in the United States, there is one judicial system at the union level and another at the state level. There is the absence of 3 lists in the Constitution of the US. Union list, state list and concurrent list यहाँ इंडिया में होती है, US में ऐसा नहीं होता. The Indian Constitution provides single citizenship, whereas US Constitution provides dual citizenship. Thus, option D is the correct. The feature of federal system of the Indian Constitution is inspired by the Constitution of Canada. The Constitution of India is federal in nature. The concept of a federal system in our Constitution is inspired from the Constitution of Canada. अगर आपको नहीं पता है कि फेडरल क्या होता है और ये सब, तो वो सब एक्सप्लेन करूँगी मैं तो काफ़ी टाइम चला जाएगा. आई एम अज्यूमिंग कि आपने बेसिक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ रखा है. यू आर हियर टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस. तो आप बेसिक्स के लिए कुछ बुक में रेफ़र कर सकते हैं कि फेडरल क्या होता है, यूनियन क्या होता है. द इंडियन फेडरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ये सेम हो गया, कैनेडा. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम American Declaration of Independence, Australian Constitution, British North American Act, the Swiss Constitution. The answer is the British North American Act. ये कनाडा के रेफरेंस में होता है. Concept of Union of States in the Indian Constitution has been derived from the British North American Act of 1867, the Constitution of Canada. According to Article 1, Part 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be a union of states. According to Constituent Assembly Debates, Volume 7, the drafting committee considers that following the language of the British North American Act 1867, it would not be appropriate to describe India as a union, although its constitution may be federal in structure. Concurrent list included in Indian Constitution is given by
Soviet Union, Australia, Italy or Canada? It is from Australia. The concurrent list is borrowed from the Constitution of Australia. In this list, those items are included on which both union and state have right to make law. It is the seventh schedule of the Constitution, which originally included 47 items, now increased to 52 items, etc. सो अगर यूनियन और स्टेट दोनों कुछ लॉ फॉर्म करते हैं और कॉन्ट्रडिक्टरी है वो टू ईच अदर वो लॉ, तो यूनियंस लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट्स. The idea of concurrent list in the Indian Constitution has been borrowed from, same question, Australia. You can see how many times it has been repeated. ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आपको अलग अलग नाम पता होने चाहिए. द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट भी सेम चीज़ ही बोल रहा है, जो कि यहाँ वाला क्वेश्चन था, जो फेडरलिज्म वाला पार्ट था वो कनाडा का. और दूसरा है नीचे ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन द 7th schedule फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये सेम क्वेश्चन हो गया ऑस्ट्रेलिया. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया. कॉन्सेप्ट ऑफ द DPSP. इन द DPSP आपको पता ही होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का शॉर्ट फॉर्म है. In the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of Irish Constitution, that is Ireland. The inclusion of directive principles of state policy in the Indian Constitution is inspired by the DPS directive principles given in the Constitution of Ireland. These provisions are mentioned in Part 4. ये पार्ट्स क्या क्या हैं, कितने हैं, उस पे भी आगे एक चैप्टर है, हम देखेंगे. तो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 of the Constitution. The directive principles of state policy are not enforceable in a court of law, but it lays down the principles which are considered fundamental in the governance of the country, making it the duty of the state to apply these principles in making law to establish a just society in the country. सो ये भी आई एम कंसिडरिंग कि एनफोर्सेबल नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ क्या होता है. जैसे फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल. अगर स्टेट आपको आपके फंडामेंटल राइट से डिप्राइव कर रहा है तो यू कैन मूव टू कोर्ट. बट DPSP में जो लिखा है वो अगर आपको स्टेट अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो दोज आर नॉट एनफोर्सेबल, यू कांट मूव टू कोर्ट फॉर दैट. ये डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट है कि वो कब, ये लिखा है संविधान में कि उनको इस पर एक्ट्स बनाने हैं सो दैट वेलफेयर हो सके लोगों का इन जनरल, एक जस्ट सोसाइटी बन सके. लेकिन अगर वो नहीं भी फुलफिल हो रहा है तो यू कांट गो टू कोर्ट फॉर दैट. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सेम क्वेश्चन, आयरलैंड. The directive principles of state policy are explained in Part 4 of the Indian Constitution. This system has been taken from Ireland. Indian Constitution has taken a certain feature of the Constitution of other countries. Which country has contributed to DPSP? Same. In giving representation to talent, experience and service in the composition of Council of States. Council of States यहाँ पे क्या नाम है? राज्य सभा. The constitution makers of India were influenced by the example of Irish Republic. Concept of formation of Rajya Sabha by representation through nomination to talent, qualification, experience and service is influenced by the Irish Republic. Match list 1 and list 2 and give correct answer by using the code given below. Fundamental rights कहाँ से लिए हैं हमने? पार्लियामेंट्री सिस्टम. फंडामेंटल राइट्स US से है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम UK लिया है हमने. और इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से हैं और DPSP आपने ऊपर देखा आयरलैंड से हैं. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2143 C. 2143. Fundamental rights from US, parliamentary system from UK, emergency provisions Germany
and DPSP from Ireland. Which one of the following is not correctly matched? Fundamental rights from US, DPSP Ireland, residual powers of center एंड एमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम जर्मनी. तो ये तीन तो आपने ऊपर देखे, लेकिन रेसिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर जो है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम with a strong center vesting of residual powers to the center, the governor's appointment by the center advisory jurisdiction of the Supreme Court has been adopted from the Constitution of Canada. Question number 19. Constitutional provision versus source. Fundamental rights, US Bill of Rights. DPSP, Irish. Cabinet government, British. Union state relations, Canadian. So let's see answer. Answer is D. Fundamental rights, US, DPSP, Irish, Cabinet, British and Union state, Canadian Constitution. आपके पास सामने बुक होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. और जहाँ पे भी आपको लगता है कि टाइम और देना चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दैट. आपको स्पीड ज़्यादा या कम जो भी लग रही यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली. अगेन लिस्ट वाला क्वेश्चन है. रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे उसमें से कॉन्करेंट लिस्ट तो आपने देखा था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, बाकी नहीं देखा. तो यहाँ पे देख लेते हैं. रूल ऑफ लॉ फ्रॉम इंग्लैंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम जापान, रिजर्विंग ऑफ अ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन इज टेकन फ्रॉम कैनेडा एंड कॉन्करेंट लिस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अगेन मैच DPSP, fundamental rights, concurrent list, India as a union of state with greater powers to union. D ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीन तो आपने ऊपर देखे ही हैं. तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन हियर. आई होप आपने ऐसा किया होगा. इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. DPSP आयरलैंड, फंडामेंटल राइट्स कॉन्करेंट लिस्ट फॉर यूनियन, fundamental rights from US, concurrent list Australia, India as the union of states with greater power to the union from Canada. Concept of fundamental duties has been taken from American, British, Russian और French. तो ये रशियन हो जाएगा. फॉर्मर सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन. Concept of fundamental duties is inspired by the Russian Constitution and was added to our Constitution by 42nd Amendment Act of 1976. The recommendation for fundamental duties was made by स्वर्ण सिंह कमेटी. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और स्वर्ण सिंह कमेटी. और आपको अगर पता है तो आप 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था या नहीं हुआ था कमेंट करके बता सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन. द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हाँ, लॉन्गेस्ट तो बन गया है, बट जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है वो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से भी लिया गया, ये भी ट्रू है. लेकिन ये चैप्टर यहाँ से लिया गया है, ये कैसे एक्सप्लेन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट है. तो बोथ आर ट्रू. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ओरिजिनली इट हैड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 schedules. The chapter on fundamental rights has been borrowed from the Constitution of the US, but this is not the only reason responsible for lengthy constitution. अभी प्रेजेंटली कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स और कितने स्केड्यूल्स हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24th. द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएस. ये आपने ऊपर देखा. पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये बोरो किया है हमने यूएसए से. अब यहाँ पे उसको इन्होंने डेलिनेट किया है कि राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 पे भी बहुत चर्चा होती है. खैर ये सारे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में आप फिर से गो थ्रू करेंगे. द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज़ ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्या क्या? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. Next, idea of fundamental rights is adopted from the constitution. Same. From which country Indian constitution has taken reference for the idea of fundamental rights? Same. Idea of fundamental rights? Same. See, कितने सारे क्वेश्चंस हैं आपने देख लिए जो कि रेपिटेटिव हैं. ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे था, कहाँ से हमने बोरो किया है? तो दैट इज़ फ्रॉम अमेरिका. ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट written constitution which includes only 7 articles. R is the lengthiest and America's written constitution is the shortest with only 7 articles. हमारे में कितने आर्टिकल्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप आगे पता चल जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टोटल अभी 22 पार्ट्स हैं और ये जो मतलब सब पार्ट्स टोटल जितने भी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A एंड 14A ये दोनों पार्ट्स जो थे वो ऐड किए गए थे अभी ऊपर जो हमने जिक्र किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. किसने रेकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा recommended था. Part 9A was added by 74th Constitutional Amendment Act of 1992. Yes, 74th Amendment Act of 1992. Part 9B was added by 97th Amendment Act of 2011. आप बता सकते हैं कि ये 1992 और ये पार्ट 9A और 9B क्या है, किससे रिलेटेड है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, किससे? आप ये कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ. चलिए फर्स्ट से देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड इज़ सिटीजनशिप, थर्ड इज़ फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ इज़ DPSP, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 यूनियन, 6 स्टेट, 8th 7th कहाँ गया, क्या आपको पता है? आप कमेंट कर सकते हैं. 8th यूनियन टेरिटरीज, 9th पंचायत, 9A जो अभी ऊपर बताया इन्होंने 9A 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जो ऐड हुआ था म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011. आई होप इट इज़ विजिबल नाउ. 10th scheduled and tribal areas, 11th relation between union and the states, 12th finance, property, contracts and suits, 13th trade, commerce and intercourse within the territory of India, 14th services under the union and states. और यहाँ पे आप
इसमें आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, ये भी देख सकते हैं, बट इस तरीके से याद तो आई डोंट थिंक सो हो सकता है। हाँ, आपको ये पूरे पार्ट्स तो लर्न करना पड़ेगा, 22 पार्ट्स जो हैं, किसी ट्रिक की हेल्प से या कैसे। बाकी आर्टिकल्स जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाएंगे आपको एक आइडिया लगता जाएगा। बाकी क्वेश्चन से भी मैं आगे डिस्कस करूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, इस पे भी सवाल आता है। 323A to 323B इलेक्शंस, अभी रिसेंटली कहाँ इलेक्शंस हुए हैं आप बता सकते हैं। 324 329A 324 आर्टिकल किसका है? कहीं इलेक्शन कमीशन का तो नहीं है? हाँ या ना कमेंट्स में लिखिए। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में? 343 टू 351। 18th इमरजेंसी, 19th मिसलेनियस। इमरजेंसी में कौन सी 3 मेजर इमरजेंसीज हम पढ़ते हैं? 2 आर्टिकल्स तो लिखे ही हैं, 352 360 और एक 356 भी पढ़ते हैं। 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, इसका जिक्र तो आपने कई बार सुना होगा। टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 टू 392। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। ओरिजिनली कितने थे? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी पार्ट्स सेम है, ऑल्दो नंबरिंग में सेम नहीं है, क्योंकि किसी किसी में पार्ट 9 है, 9 भी ऐसे भी ऐड हो गया है, बट ऐसे नंबरिंग 22 ही है। साथ में आर्टिकल्स का भी नंबर चेंज हुआ है और स्केड्यूल्स का भी नंबर चेंज हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऊपर आपने देखा था, बट एनीवे यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1, सिटीजनशिप 2, फंडामेंटल राइट्स 3, DPSP 4 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज भी 4A या आर्टिकल 15A क्यों है? क्योंकि इसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। नेक्स्ट, the provision for election commission of Indian constitution was inspired by which of the following countries? Ireland, UK, USA या none of the above? Method of the election of the president in the Indian constitution is inspired by the constitution of Ireland. Election commission in the Indian constitution is not inspired by any constitution of the world. Next, which one of the following is not matched correctly? Citizenship part 2, fundamental rights part 3, fundamental duties part 6A, state part 6 of the constitution। तो ये हमने देखा था कि ये पार्ट 4A का है। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, 6A नहीं, तो C गलत हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। पंचायत हमने देखा था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। कौन से आप लिख सकते हैं, किस ईयर में, ये भी ऊपर बताया गया था। पार्ट 9, इन 1992 73rd and 74th constitutional amendments were passed by the parliament. 73rd amendment is about rural local government known as Panchayati Raj institution. 74th amendment is related to urban local government Nagar Palikas. 73rd amendment introduces 3-tier panchayat system in part 9 of the constitution. At the base is Gram Panchayat, which covers a village or group of villages. Intermediary level is the Mandal or Taluka Panchayat. Intermediary level body need not be constituted in smaller states having a population of less than 20 lakhs. इस पे भी सवाल बनता है कई बार कि अगर population is less than 20 lakhs है, या कितनी population
एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर हमें इसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें इंटरमीडिएरी लेवल की भी गवर्नेंस चाहिए, तो जो एट दी तालुका या मंडल लेवल पे होती है। एट द एपेक्स इज जिला पंचायत विच कवर्स द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। Next is, which part and charter of the Indian Constitution deal with the legislative relation between the Union and the states? Part 11th and Chapter 1. Part 11th of the Indian Constitution deals with the relation between Union and the states. Chapter 1 of Part 11 is about the distribution of legislative power between the Union and the states, whereas Chapter 2 deals with the administrative relations between them. Part 12 deals with finance, property, contract and suit. List 1 and List 2. Subjects and parts of the Constitution. Abolition of titles, organization of village panchayat to provide the opportunity for education to the child or ward between 6 to 14 year of age. India, that is Bharat, is the union of states. तो इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकता, डीपीएसपी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये फंडामेंटल राइट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, दिस इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि ये इनिशियली डीपीएसपी में था, लेकिन फिर विलेज पंचायत्स जो अभी आगे पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि 3 टीयर की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। वो ओरिजिनली डीपीएसपी में था, तो जो एनफोर्सेबल वाली चीज़ थी, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था तो क्या कोई कोर्ट जा सकता था कि हमारे पास विलेज पंचायत नहीं है? तो वो नहीं जा सकता था। फिर है टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड और वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स नहीं, पार्ट 3 होता है ये। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप नहीं, ये पार्ट 2 होता है। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी नहीं, तो C इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 2 इज सिटीजनशिप, 3 इज फंडामेंटल राइट्स, 4 इज डीपीएसपी। 4A to fundamental duties and part 5 is related to union. Which one among the following is not correctly matched? Citizenship, part 2. Municipality is 9A, part 9 पंचायत का था, 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इलेक्शन, पार्ट 15, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया? यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 7। यूनियन टेरिटरीज इज पार्ट 8, बाकी सारे करेक्ट हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत्स। 8th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने ये देखा, यूटी। फोर ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 9A इज म्यूनिसिपैलिटीज, तो आंसर हो गया 3, 1, 4, 2 A। ये 3, 1, 4, 2।
Which among the following provision part of the constitution is not correctly matched? Official language part 17 पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच. यूटी पार्ट 8, scheduled and tribal areas part 10th and tribunals part 11. Tribunals are not mentioned in part 11 but in part 14. They were inserted in constitution by 42nd amendment act. आपको अब विजिबल होगा बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अंडर आर्टिकल 323A. ये मैंने ऊपर कहा भी था, इस पे सवाल बनता है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 in itself is very important. It is also known as mini constitution, which deals with administrative tribunals, and article 323B which deals with tribunals for other matters. Part 11 has various provisions related to center state relations. Hence D is the correct answer. Which of the following is not correctly matched under the Constitution of India? Panchayats part 9, municipalities 9A, cooperative societies 9B. ये मैंने आपको ऊपर बताया. ट्रिब्यूनल्स ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने यहाँ पे देखा कि ये पार्ट 14 है, 14A. इसलिए ये नॉट करेक्टली मैच्ड हो गया. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस फॉर पंचायती राज सिस्टम? पार्ट 9 आपने ऊपर देखा. इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड? पार्ट 9. मैच लिस्ट 1 and 2, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन, एमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब ऊपर आपने देखा तो सेम क्वेश्चन है. राइट्स पार्ट 3, ड्यूटीज 4A, यूनियन पार्ट 5, एमरजेंसी प्रोविजंस ये नहीं देखा अभी तक, तो ये पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, स्टेट्स पार्ट 6, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 14. तो यहाँ पर पार्ट 13 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स था. अटॉर्नी जनरल के लिए पार्ट 5, जहाँ पे पार्ट 5 में क्या था? यूनियन. तो ये यूनियन का पार्ट है, इसलिए पार्ट 5. मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर. Part 15, Part 16, 17 and 18. 15 is election, आपने देखा 323. 15, then 16 special provisions regarding certain classes. 17 official languages. Emergency provisions part 18th. ये आपने ऊपर यहाँ पे भी देखा था, एक क्वेश्चन था ना पार्ट 18 वाला. Part 16 of the Indian Constitution is related to Part 16, special provisions regarding certain classes. 330 to 342 of the Indian Constitution deals with the special provisions relating to certain classes. Next is articles of the Constitution. अब ये I think of course सारे articles ऐसे सीधे अगर आपने बाकी सब नहीं किया है तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्वेश्चन से आप गो थ्रू कर जाइए. पर जैसे जैसे आप जिस टॉपिक पर पहुंचेंगे, जिस चैप्टर में, आपको वो आर्टिकल्स याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा. और स्टेट पीसीएस में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको मेन आर्टिकल्स तो याद करने पड़ेंगे. इसलिए इसका और कोई तरीका नहीं है, बस आपको याद करना पड़ेगा बार बार रिवाइज करके. तो आर्टिकल्स वाला जो है इसमें हम देख लेते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन 400 आर्टिकल्स. ओरिजिनली कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, और ओरिजिनली 8 स्केड्यूल्स थे, बट करेंटली 12 स्केड्यूल्स हैं. तो अभी करेंटली मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं.
Originally, there were 22 parts, 395 articles, 8 schedules in the Constitution of India. A number of articles were added and removed later through amendments. At present, there are around 468 articles. आप बता सकते हैं आर्टिकल नंबर 368 ऊपर भी जिक्र हुआ है, वो किस लिए यूज़ होता है? But these are added in the form of subparts such as A, B, C, etc. of the original articles 395. There are 12 schedules at present. There were originally how many articles in the Constitution of India? 395. Total number of articles, schedules in the Constitution, calculation और numbering wise 2003 का क्वेश्चन है ये. तो अभी तो 12 स्केड्यूल्स हैं बट ओरिजिनली 8 थे, तो मे बी दैट्स वाई इन्होंने कोई भी करेक्ट आंसर नहीं माना है. हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, सेम क्वेश्चन, मैच, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और 323A, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 323A. ये भी कई बार रिपीट हो गया. और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है, तो इसका ये ऑप्शन सही है. Provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the Constitution of India under, इसमें finance bill की बात हो रही है. Article 117. According to 117, special provisions as to financial bills are made as a bill or amendment making provision for any of the matters regarding the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president, and a bill making such provision shall not be introduced in the Council of States, which is Rajya Sabha, provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax. Special provision regarding same question, Article 117. Special provision in regard to financial bills is provided in 117 article. Its 3 clauses gives various conditions for the financial bill. Article 119 gives provisions for regulation of law. Article 121 imposes a restriction on the discussion in the Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. Article 123 is related to the promulgation of an ordinance by the President. Article 123 is also very important. हालांकि आप प्रेसिडेंट चैप्टर में देखेंगे, स्टिल यहाँ पे भी देख लिया तो आपको वहाँ पे रिवाइज होगा. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following articles of the Indian Constitution provides for all India services? Article 312 of Indian Constitution provides for all India services if the Council of States had declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest for the creation of one or more all India services. Parliament may by law provide for one or more all India services. Which one of the following pairs institutions and articles of the Constitution is properly matched? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 318, इलेक्शन कमीशन 324, ये मैंने ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, विच इज़ करेक्ट. यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल, ये आप जैसे जैसे चैप्टर करेंगे आपको पता चलेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड. अभी अभी कौन से स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है और कहाँ पर डिस्कशन चल रहा है इसे लागू करने का, आपको पता हो तो बता सकते हैं. 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गिवन इन आर्टिकल 50.
not 48. While 48 provides for the organization of agriculture and animal husbandry. Match list 1 and list 2. 124, 5, 352, 245. 5 ये तो आपको पता होगा कि छोड़िए, मैं आपको सीधे एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. 5 contains provisions for citizenship. 124 is for the establishment of Supreme Court. अभी ऊपर आपने आर्टिकल 123 देखा था जो कि ऑर्डिनेंस से रिलेटेड था. Article 245 is related to the distribution of legislative powers between the union and state legislatures. 245. 352 emergency. 124. 352 is related to proclamation of emergency. ऊपर हम जहाँ emergency डिस्कस कर रहे थे 3 आर्टिकल्स बताए थे, 2 लिखे थे, 352 और 360 लिखा था. मैंने बोला था एक 356 और होता है, ये emergency वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं. आर्टिकल 14, 36, 74, 368. क्वालिटी कह रहा, आप एक्सप्लेनेशन देखिए. ये इसमें आपको नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप अभी आगे चैप्टर्स देखेंगे तो आपको सब आ जाएगा. उसमें एक एक आर्टिकल पे डिस्कशन होता है और ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल्स पूछे जाते हैं. आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी. 36 इज रिलेटेड टू DPSP. 74 is related to Council of Ministers, and Article 368 provides the procedure for amendment of the Constitution. To admit new state by law, right to equality, ये आप देख सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है. ये यूनियन का पार्ट है, मतलब यूनियन वो नहीं जहाँ पे कि टेरिटरी की बात होती है. Protection against arrest and detention. This is also a fundamental right. Power of the president to assent the bill. To admit new states by law. Article 2 जो मैंने टेरिटरी वाला बताया आपको उसका पार्ट है. Right to equality. Right to equality, Article 14. Protection against arrest and detention, Article 22. Power of the President to assent bills, Article 111. आप Article 123 रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर आप 111 याद कर सकते हैं कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल्स, तो 123 आर्टिकल क्या करता था? आर्टिकल 54, 75, 155, 164. 54 related to election of the president. 75 related to the appointment of prime minister and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister. 155 related to the appointment of governor. 164 is related to the appointment of chief ministers of the states, and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of chief minister. 170 contains provisions for the composition of state legislative assemblies. Next, Article 61, 67B, 94 and 90. 61 procedure for impeachment of the president. 67B removal of vice president. 94 speaker's removal, and 90 removal of deputy chairman of राज्य सभा. आप बताइए चेयरमैन ऑफ राज्य सभा का इलेक्शन होता है या कौन होता है? वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. लिस्ट 1, लिस्ट 2. आर्टिकल 324, 315, 280 एंड 338. 324 तो मैंने ऊपर जिक्र किया है, इलेक्शन कमीशन. 315 इज पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल इंडिया सर्विसेज की भी बात हो रही थी ना. 280 इज फिनेंस कमीशन, NK सिंह. 15th फिनेंस कमीशन. अभी कौन सा फिनेंस कमीशन है आप बता सकते हैं, मतलब किन की रिपोर्ट सबमिट हुई है.
एंड 338 नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट। प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं सब कुछ आपसे ही पूछ रही हूँ, इस वे में थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं इस वीडियोज़ में, मैं और क्या चेंजेस कर सकती हूँ, आपको पसंद आ रहा है या नहीं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, आर्टिकल 323A, 324, 330, 320, 324 कितनी बार रिपीट हो गया, और 323A भी, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, बाकी दो नए हैं। तो 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, 324 इलेक्शन, 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोक सभा, 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये भी ऊपर भी था पब्लिक सर्विस कमीशन, बट ये आर्टिकल 315 था। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है 315 और 320 में, ये भी एक अलग से चैप्टर है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किससे होते हैं, तो मैंने आपको पूछा था 368 क्या करता है। फिनेंस कमीशन आपने अभी देखा कि 280 था। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके लिए इमरजेंसी के लिए मैंने 3 आर्टिकल्स कई बार बताए, 352, 356, 360। ऑल इंडिया सर्विसेज आपने पीछे देखा ही। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ऑल इंडिया सर्विसेज 312। लिस्ट 1, लिस्ट 2, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको कैग बोलते हैं। फिनेंस कमीशन सेम, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेम, एंड यूपीएससी सेम। सिर्फ कैग का आर्टिकल आपको याद करना होगा यहाँ पे, बाकी फिनेंस कमीशन आर्टिकल 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A, यूपीएससी 315। कैग का आर्टिकल है आर्टिकल 148। Which one of the following pages is not correctly matched? Interstate Council 263, Finance Commission 280, Administrative Tribunal 323A, UPSC 315. All the options and questions are correctly matched. Interstate Council is also 263, that is why. Next, match list 1, list 2, article 26, 40, 98 and 239. Article 26, freedom to manage religious affairs, fundamental right. 40, organization of village panchayats. Article 98, secretariat of parliament. 239, administration of union territories. Is matched correctly, कौन सा correct match है, तो 352 proclamation of emergency, बाकी ये 17 है fundamental right, बट ये untouchability है 78 और 192 देख लेते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 352, while 17 is related to abolition of untouchability, 78 duties of prime minister regarding furnishing information to the president, 192 related to decision on questions of disqualification of members of the house of legislature of a state. Again matching, यहाँ पर नेक्स्ट है 215 इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, उनके जजमेंट्स को यूज़ किया जाता है ना कि ये कहा गया था, तो उसलिए उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, ये भी आगे देखेंगे। 222 ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, ये मैं इतनी जल्दी गो थ्रू इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे अगर आपको याद नहीं है तो डिस्कस करने से भी आपको नहीं याद हो जाएगा, जब चैप्टर्स आएंगे आपके बार बार रिवाइज होंगे तो आपको याद होगा। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। 226 रिट जूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, दो तरीके के होते हैं, एक आपने आर्टिकल 32 पढ़ा और एक आर्टिकल 226, क्या डिफरेंस है दोनों में। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 241। नेक्स्ट आर्टिकल 76, 148, 75 एंड 131। 76 इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपने ऊपर देखा था। 148 कैग, ये भी देखा था। 75 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर एंड 131 ओरिजिनल जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट
Again, list equality before law, right to work, just and humane conditions of work, free and compulsory education for children. Match list is as follows: equality before law, आर्टिकल 14. यहाँ पे हाँ ये है. राइट टू वर्क, आर्टिकल 41. जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, आर्टिकल 42. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन below the age of 6 years, article 45. इन्होंने इसमें कोई भी आंसर करेक्ट इसलिए नहीं कंसिडर किया है. प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वॉज ओरिजिनली मैंशनड इन आर्टिकल 45 अंडर DPSP, बट बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, it has been included as a fundamental rights under article 21A, and in article 45 it has been replaced by the provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. Which one of the following is not correctly matched? Article of the Indian Constitution related states 371 A, B, C, D. So C is not correctly matched for Meghalaya. Special provisions with respect to the state of Manipur, नॉट मेघालय. ये भी आप आगे देखेंगे. तो ये क्लास यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ इसको. आप अभी ओवरवेल्म मत हो जाइए अगर आपको नहीं पता है कि ये सारे आर्टिकल्स के बारे में. धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे आपको पता चलता जाएगा कि क्या करना है. आप अगर ये सीरीज़ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट्स में उसे लिख सकते हैं. और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं. उससे मुझे समझ में आएगा कि मुझे किस वे जाना है इसे आगे लेकर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल कंटिन्यू द सीरीज़. बाय.